Hello everyone, welcome to eCoaching. So in this session, we are going to look at few more CAT questions of data interpretation, right? So till now, we have seen the CAT section of DI of 2017, right? So today we are going to look at the paper of 2018. So the sets that I'm going to discuss, they were from 2018 CAT paper. If I talk about the difficulty level, they were moderate to difficult, right? Although there were a couple of easy sections and easy sets as well, right? And what you need to do is you need to target those easy sets so that you can increase your score, right? So that is what we have to learn during these videos, right? The format of this video is going to be the similar one, same as the previous one, that I will show you the data first. I will give you some time to develop your understanding of the data. Then I will take you through the questions one by one. You will try it on your own. I will give you the level of difficulty as well as the required time to solve them. And after that, we will solve it together, right? So that is how we are going to proceed. Okay, so let's have a look at set number 1. So the data is on screen. What I would request you to do is pause the video, read the data for about 3 minutes and try to understand what has been given, right? Pause the video, take 3 minutes. In case if you need more, I'm fine with that. That's completely fine. But then pause the video, take your own time, understand everything. 3 minutes is what I'm telling you. You can take 4 or 5, that's fine. Okay, so I hope by now you have read and understood what has been given. Okay, so we've got a table. The set is about some marks, right? That is what we can say. So let me take you through the questions. Question 1. Which of the following statements must be true? Statement number 1. Jatin's composite score was more than that of Danish. Statement number 2. Indu scored less than Chetna in DI. And statement number 3, Jatin scored more than Indu in GA. That should be general awareness. There are 4 options. So this question, the level of difficulty would be moderate to difficult, right? Take 2.5 minutes, not more than that. Pause the video for about 2.5 minutes. Solve it on your own and come back to me when you have the answer in your hand. Okay, so I hope by now you have tried it on your own and you have marked the answer. Let me go to the next question. Question number 2 is on the screen. Which of the following statements must be false? Bala scored same as Jatin in data interpretation, DI. Bala's composite score was less than that of Esther. Chetna scored more than Bala in DI. And Harini's composite score was less than that of Falak. So that is question number 2. The level of difficulty is moderate. Again, I'll give you 2.5 minutes. I'll get out of the screen, pause the video, try to solve on your own and come back to me when you have the answer. Alright, so I hope by now you have tried it on your own and you've got the answer. Let me go to question number 3. If all the candidates except Ajay and Danish had different marks in DI and Bala's composite score was less than Chetna's composite score, then what is the maximum marks that Bala could have scored in DI? And that's a theta question. We know what theta means. Type in the answer, right? So let's say here is a box and you are supposed to enter your answer here. So just note down your answer in your notepad. The level of difficulty is moderate. Once again, take about 2.5 minutes or 3 minutes, right? Pause the video, try to solve it on your own. Come back to me when you have the answer. Alright, so I hope by now you have marked your answer. Let me go to the last question of this set. If all the candidates scored different marks in WE, then what is the maximum marks that Harini could have scored in WE? The question is theta, right? Once again, it is moderate to difficult. Take out 3 minutes, not more than that. Come back to me when you have the answer. Pause the video, try to solve it on your own. When you have the answer, come back to me. Okay, so I hope you are done by now, right? So this is the first set, correct? Ideally, you should take about 15 minutes, maximum 15 minutes if you solve it on your own, right? In the actual CAT paper, right? So let's go back to the set and solve it together. Okay. Now, what has been given? A company administers a written test comprising of these 3 sections of 20 marks each. Data interpretation, that is DI, written English, that is WE, general awareness, that is GA for recruitment.
A composite score for a candidate out of 80 is calculated, doubling her marks in DI. Please note that you are doubling the marks in DI and adding it to the sum of her marks in the other two sections. Candidates who score less than 70% marks in 2 or more sections are disqualified. Please understand, candidates who score 70% or less, candidates who score less than 70% marks in 2 or more sections are disqualified. Okay, we know that the marks are 20 for each. So let me just write here that यहाँ होगा 20 into 2, यहाँ पर होगा 20 और यहाँ पर होगा 20. उसका 70% कितना होता है? What is 70% of 20? Of course 14. So here you need a score of at least 14 into 2, that is 28. Here you need 14, here you need 14. Right? So just from looking at the data, we can identify that some candidates have already been disqualified. For example, what about Bala? See, Bala has not scored 70% in WE and GA, so Bala has not been selected. Bala is disqualified. Chetna has scored 4 in WE, 12 in GA. Chetna has not been qualified. Danish has scored 8 in DI, 15 in written English, that is fine, and we don't know the score of GA. Esther has scored 12 in DI, not satisfying, 18 in WE, yes, 16 in GA, satisfactory. Falak, 15 in DI, that's fine, but 7 in WE and 10 in GA, so disqualified. Geeta, 14 in DI, 14 ही चाहिए था, that's fine. 6 in GA, but we don't know the score of written English, so we don't know the status. Indu, again, we know only one subject ke marks, so we don't know the status. Jatin, 16 in WE, that is fine, and 14 in GA, that is also fine, so we don't know the status. So we can say that Bala, Chetna and Falak, these candidates are already disqualified. Okay? Now, from among the rest, the 4 with highest composite scores are recruited. Please note that the 4 with highest composite scores are recruited. If 4 or less candidates qualify, all who qualify are recruited. So basically, they want to select 4 or minimum, 4 or less, right? So basically, they have to select maximum of 4 candidates, the 4 with highest composite scores, right? And what is the composite score? We know that DI into 2, W into 1 and GA into 1. इसको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? Composite score मिल जाएगा, right? ठीक है. Let's move on. 10 candidates appeared for written test. Their marks in the test are given in the table. We have just seen the table. Now we have some data. Some marks in the table are missing, but the following facts are known. So Ajay was the unique highest scorer in WE. Ajay का WE में highest score भी है और unique भी है. What do you mean by unique? Unique का मतलब होता है कि अजय का जो score होगा, that score will not be the same for anyone else. And Ajay is highest. Now look at WE. The highest score I can see is 18. But वो एस्टर का है और हमें ये भी पता चला है कि WE का highest score अजय का ही होना चाहिए, जो यूनिक होना चाहिए. So can I say that Ajay will definitely score more than 18 in WE? So I can say either 19 or 20. इतना अभी हम बोल सकते हैं. ठीक है. What else? Next statement. No two candidates had the same composite score. अच्छी बात है, किसी भी कैंडिडेट का composite score same नहीं था. That's a really nice information. ये हमें लास्ट में काम आएगा. You can predict that. ये अभी काम नहीं आ सकता because we don't know few details, but ये हमें लास्ट में बहुत में काम आएगा. ठीक है, fine. Among the 4 recruited, Geeta had the lowest composite score. So पहली बात ये हमें पता चली कि 4 select हुए हैं. So 4 yes. और उसमें से एक गीता है, क्या बताया गीता के बारे में? गीता हैड द लोएस्ट कॉम्पोजिट स्कोर. सो गीता का स्कोर लोएस्ट है. लेट मी जस्ट मेंशन इट समवेयर. सो गीता हैज बीन सिलेक्टेड. सो लेट आई विल पुट अ टिक हियर, बट वी नो दैट गीता का स्कोर लोएस्ट है. सो गीता के सामने मैं लिख देता हूं गीता lowest total. Okay, can you say that? And यहां लिख दूंगा 4 selected.
और यहाँ पर हमने टिक कर दिया, इसका मतलब गीता सिलेक्टेड। चलो इतना हमें समझ में आ चुका है। इंदु वॉज रिक्रूटेड, ये भी पता है, वेरी गुड। चलो इंदु को भी टिक कर देते हैं। इंदु का स्कोर देखो W में बहुत कम है, बट फिर भी वो रिक्रूट हुई है, तो ऑब्वियसली बात है आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर एक सब्जेक्ट में स्कोर कम है, फिर भी अगर कैंडिडेट रिक्रूट हुआ है, तो ऑब्वियसली बाकी दोनों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स होंगे, राइट? ठीक है। दानिश, हरिणी एंड इंदु हैड स्कोर्ड द सेम मार्क्स इन GA। ये तीन लोगों ने GA में सेम मार्क्स थे इनके। GA मतलब जनरल अवेयरनेस। सो दानिश यहां पर है, हरिणी यहां पर है और इंदु यहां पर है। लेट मी जस्ट अज्यूम देयर स्कोर एज X। ये X, ये X और ये भी X। चलो यहां तक वी आर फाइन। देन इंदु एंड जतिन बोथ स्कोर्ड 100% इन एग्जैक्टली वन सेक्शन। इंदु एंड जतिन दोनों ने 100% कोई एक सेक्शन में स्कोर किया है। देखिए जतिन का ना तो WE में 100% है, ना तो GA में 100% है, तो ऑब्वियसली हमें ये समझ में आ गया कि जतिन का DI में स्कोर 100% का मतलब 20। करेक्ट? जतिन का स्कोर इसमें 100% होगा मतलब 20। एंड जतिन का इसमें 20 स्कोर है, यहां पर 16 स्कोर है, यहां पर 14 स्कोर है। वो तीनों सब्जेक्ट में 70% से ज्यादा मार्क्स ला रहा है। सो मतलब जतिन कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, राइट? सो वी नो दैट जतिन हैज बीन क्वालिफाइड, राइट? जतिन का टोटल स्कोर भी मिल जाएगा। चलिए जतिन का टोटल स्कोर कितना होगा? 20 इंटू 2 40, 40 एंड 30 70। We know the total score of Jatin, that is 70. Now, इंदु ने भी किसी एक सेक्शन में 100% स्कोर किया है। इंदु कहां पर है? इंदु यहां पर है। Now, DI का स्कोर इंदु का मिसिंग है एंड GA का स्कोर भी इंदु का मिसिंग है ना? सो GA में हो सकता है कि वो 20 स्कोर करे, यहां पर 20 20 20, या तो हो सकता है कि इंदु DI में 20 का स्कोर ला सकती है, राइट? अभी इतना फिलहाल पॉसिबल है, ठीक है। नाउ जतिन्स कॉम्पोजिट स्कोर वाज 10 मोर देन इंदुज। सो ऑब्वियसली इंदु का स्कोर कितना होगा? 60। जतिन का 70 होगा, तो इंदु का कॉम्पोजिट स्कोर कितना होगा? 60 होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज द इंफॉर्मेशन। अभी फिलहाल हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है। यहां पर अजय का स्कोर होगा 19 या 20, राइट? किसका किसका टोटल हमें मालूम है, तो उसका टोटल कर देते हैं। चलिए, वी कैन फाइंड द टोटल ऑफ एस्टर, दैट इज 18 प्लस 16 34, 34 एंड 24, क्योंकि DI के स्कोर को डबल करना है। 34 24 होता है 58, तो एस्टर का स्कोर हो जाएगा 58। ओके, इंदु का स्कोर है 60, जतिन का स्कोर है 70, एस्टर क्वालिफाई भी कर रहा है, स्कोर 58 है, फाइन। दानिश का स्कोर नहीं मालूम, चेतना का स्कोर पता है, 19 को डबल करेंगे 38, 38 एंड 4 42, 42 एंड 12 54। ओके, और किसका स्कोर पता है हमें? फलक का स्कोर पता है, 15 का डबल 30, 30 एंड 10 एंड 7 दैट इज 47। ओके, गीता सिलेक्ट होने वालों में से लोएस्ट टोटल है गीता का। सो गीता का टोटल कितना होगा? 14 का डबल 28, 28 एंड 6, 28 और 6 हो जाएगा 34, करेक्ट? ये 28 और ये 6 हो जाएगा 34, 34 प्लस यहां पर कोई ना कोई स्कोर आना चाहिए, करेक्ट? ठीक है। क्या यहां पर 34, अगर मान लो गीता का स्कोर ये 14 इंटू 2 28 प्लस 6 34 है, क्या गीता 20 स्कोर कर सकती है WE में? अगर गीता इधर 20 स्कोर करती है अगर, तो ये स्कोर कितना हो जाएगा उसका? 28 48 एंड 6 54, 54, लेकिन चेतना का ऑलरेडी स्कोर आ चुका है, 54 चेतना का ऑलरेडी स्कोर आ चुका है, तो इसका मतलब गीता यहां पर पक्का 20 नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि पक्का यहां पर 20 नहीं। चले 20 नहीं है तो क्या 19 है? तो गीता का स्कोर अगर 19 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 28 6 34, 34 एंड 19 53, और गीता सिलेक्ट हुई है, करेक्ट? तो गीता सिलेक्ट हुई और उसका स्कोर 53 हो सकता है। अगर यहां पर मैं 18 लेते हैं तो 52 हो जाएगा, वो भी पॉसिबल है फिलहाल, राइट? बट इतना समझ में आएगा कि 20 तो नहीं हो सकता है स्कोर, ठीक है?
ये हमें समझ में आ चुका है। ओके, व्हाट एल्स, व्हाट कैन वी से सो? और किसका टोटल हम बता सकते हैं? सो ये चेतना का मिल गया, दानिश का बाकी है टोटल अभी, एस्टर का टोटल 58 है, फलक का टोटल 47 है, गीता का टोटल नहीं मालूम, ठीक है। अजय का टोटल कितना हो सकता है? अजय का टोटल 18 का डबल 16, 16 प्लस 16 32, तो या तो ये 52 होगा या तो 51 होगा, इतना अभी हमें मालूम है अजय का स्कोर। आइदर इट विल बी 51 और 52। तो किसी का अभी तक 51 या 52 स्कोर नहीं आया, सो कंप्लीटली फाइन, ठीक है। ओके, हरिणी का स्कोर अभी नहीं मालूम है क्योंकि हरिणी यहाँ पर x दिया हुआ है। सिमिलरली इंदु का भी यहाँ पर x होगा। ओके, दिस मच इंफॉर्मेशन वी हैव। बाला का स्कोर कितना हो जाएगा? 9 and 11 20, 20 प्लस ये मिसिंग वैल्यू, ठीक है। नाउ इज देयर एनी अदर इंफॉर्मेशन जिसको हम अभी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में जाने से पहले? लेट्स फाइंड आउट। सो किसी का कॉम्पोजिट स्कोर सेम नहीं है, ये हमने देखा अभी, जितनों का आया हो उतनों का कॉम्पोजिट स्कोर सेम ना हो। इंदु रिक्रूट हुई है, सो इंदु का स्कोर 60, वैसे भी इंदु का स्कोर 60 है, सो 8 प्लस x प्लस ये वाला स्कोर दैट हैज टू बी 60, ठीक है। उसके बाद इंदु का किसी एक सेक्शन में 100% स्कोर जरूरी है, इंदु का किसी एक सेक्शन में 100% स्कोर जरूरी है। इसका मतलब या तो यहां पर 20 होगा, अगर यहां पर 20 होता है तो क्या होता है? सो 20 का डबल 40, 40 प्लस 8 48, तो x हैज टू बी 12, x हैज टू बी 12। और अगर x 12 है तो क्या उससे कोई परेशानी होती है? लेट्स चेक। अगर x 12 है तो 12 प्लस 16 28, 28 एंड 15, 28 एंड 15 हो जाएगा 53, सो दैट इज फाइन। सिमिलरली अगर मैं यहां पर x ले ली तो ये वाला x है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर ये 20 है तो ये 8 प्लस 20 28, अगर ये x 20 है तो 8 प्लस 20 28। इंदु का स्कोर DI में 32 होना चाहिए, 32 मतलब यहां पर 16 होना चाहिए, सो ये भी चलेगा। बट अगर x 20 है तो हरिणी का भी इधर 20 आ जाएगा, चलो वो प्रॉब्लम नहीं है। दानिश का स्कोर कितना हो जाएगा? 16 एंड 15, 16 एंड 15 हो जाएगा 31, 31 एंड 20 51, सो दानिश का स्कोर 51 हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम है कि 51 का स्कोर अजय का भी हो सकता है, प्रॉब्लम है कि 51 का स्कोर अजय का भी हो सकता है, राइट। सो यहां तक अपना टेबल अभी भरा हुआ है। लेट्स क्विकली गो थ्रू एनी ऑफ द पॉइंट्स एंड सी क्या हम कुछ और डिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेम मार्क्स इन जीए, राइट। इंदु जतिन 100% एग्जैक्टली 1 स्कोर, जतिन का स्कोर कॉम्पोजिट उससे 10 70 60, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। डन डन डन, ठीक है। ओके, चलो विद दिस डेटा लेट्स सी क्वेश्चन 1 क्या है, हमें क्या ढूंढना है। Which of the following statements must be true? Jatin's composite score was more than that of Danish. चलिए पहले चेक कर लेते हैं। जतिन का composite score है 70, दानिश का composite score कितना होगा? So Danish has 8, so 8 का ये 16, 16 plus 15 31। अगर ये हाईएस्ट भी है तो भी ये 51 हो सकता है हाईएस्ट। जतिन का तो 70 स्कोर है, तो ऑब्वियसली वो स्टेटमेंट तो सही होना चाहिए कि जतिन का स्कोर दानिश से ऊपर है, सो ये ट्रू है। इंदु स्कोर लेस देन चेतना इन डीआई एंड जतिन स्कोर मोर देन इंदु इन जीए। चलो ये दो स्टेटमेंट देख लेते हैं। और अगर मैं ऑप्शन में देखूं को ओनली वन कहां पर है? बोथ 1 and 2, सो ऑब्वियसली ये गया आंसर। सो दिस कैन नॉट बी माई आंसर, दिस कैन नॉट बी माई आंसर। आंसर अब दो ही बचे हैं, ओनली वन, बोथ 1 and 2। सो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत ही है, थर्ड स्टेटमेंट तो गलत ही है, पता चल गया। इसका मतलब जतिन का इंदु से जीए में ज्यादा स्कोर नहीं है, जतिन का जीए में इंदु से ज्यादा स्कोर नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट पे और सब कुछ डिपेंड करता है कि डीआई का स्कोर, इंदु स्कोर लेस देन चेतना, सो इंदु वर्सेस चेतना, ये हमें चेक करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, यहां पर आ जाते हैं। सो इंदु चेतना का है 12 और इंदु का है x, ठीक है। ओके, एंड वन मोर थिंग वी गॉट टू फाइंड आउट, वो क्या था? जतिन के स्कोर के बारे में। जतिन का जीए में इंदु से कम है, इतना पता चल गया हमें। जतिन का जीए में इंदु से कम स्कोर है, इसका मतलब इंदु का स्कोर ज्यादा होना चाहिए। ओके,
इंदु का कहीं ना कहीं 20 स्कोर है ही है, इसका मतलब ऑब्वियसली इंदु का स्कोर मैं 20 अगर यहां डालता हूं तो इधर 12 आ जाएगा, जो कि वो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि जतिन का स्कोर फिर ज्यादा हो जाएगा. सो आई हैव टू गो टू द सेकंड पॉसिबिलिटी कि x इज 20. दैट मींस ये 20 हो जाएगा, उसके ऊपर वाला भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा. दैट मींस ये 20 प्लस 8, ओवरऑल स्कोर 60 है, तो 32 यहां से आ रहा होगा, मतलब ये 16 है. इंदु का जीए में हाईएस्ट हो गया, जतिन का इसमें हाईएस्ट हो गया. ठीक है, ओके. अब क्या हम बता सकते हैं, व्हाट एल्स कैन वी डू, वी कैन फाइंड द सम. किसका सम मिल जाएगा, ये 60 मिल गया सम, ये 47, ये 58 है, ये सम मिल जाएगा दानिश का. दानिश का सम कितना हो जाएगा, 8 and 15, 8 into 2 16 plus 15 31 plus 20 51. इसका मतलब है कि अजय का स्कोर 51 नहीं हो सकता है, तो अजय का स्कोर हैज टू बी 52. दैट मींस अजय हैज टू स्कोर 20 इन WE. करेक्ट. तो अजय का भी कॉम्पोजिट स्कोर मिल चुका है अपने को. गीता का लोएस्ट टोटल है यहां पर, इतना भी दिया हुआ है अपने को. सो ठीक है, दैट्स फाइन, वो बाद में सिलेक्ट करेंगे. बट फिलहाल हमें एक चीज पता चल गई है. सेकेंड स्टेटमेंट, इंदु स्कोर्ड लेस देन चेतना इन DI. बस यही चेक करना है. इंदु का DI में स्कोर 16, चेतना का DI में स्कोर 19. सो यस, दैट इज ट्रू. सो इंदु स्कोर्ड लेस इन DI. इंदु स्कोर्ड लेस इन DI, दैट्स करेक्ट. तो अपना आंसर क्या आएगा, बोथ 1 and 2. दैट इज द आंसर, both 1 and 2, right? So this was the first question. और first question जब भी आप DI का सॉल्व करते हो तो you understand a lot of things from the table. आपको almost 80% पूरा का पूरा सेट समझ में आ जाता है. करेक्ट. इसी वजह से फर्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगे तो दैट्स फाइन, बट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में आपको कम टाइम लगना चाहिए. So this was question 1. Let's move on. Question 2. Which of the following statements must be false? Okay. बाला स्कोर्ड सेम एज जतिन इन DI. पहले ये चेक कर लेते हैं. बाला स्कोर्ड सेम एज जतिन इन DI. अब हमें ये चेक करना है. चलिए, जतिन का तो DI में स्कोर 20 है, अगर बाला का 20 है तो क्या सीन बनेगा, 20 into 2 40. अगर ये 20 है तो 40 यहां से प्लस 20 60 हो जाएगा, बट 60 तो इंदु का स्कोर ऑलरेडी है. इसका मतलब है कि बाला का स्कोर जतिन से सेम नहीं हो सकता है ना. बाला का स्कोर जतिन से सेम नहीं हो सकता. सो एक चीज पता चली अपने को, बाला स्कोर सेम एज जतिन दिया, ये फॉल्स होगा, मतलब यस ये स्टेटमेंट फॉल्स है. F है ना. बाला's composite score was less than that of Esther. चलिए वापस आते हैं. बाला का composite score was less than that of Esther. Esther का composite score 58 है. ठीक है, एस्टर का कॉम्पोजिट स्कोर 58 है. बाला का यहां पर 20 नहीं है. ओके, 19 आ सकता है. अगर यहां पर 19 आएगा तो क्या होगा, 19 into 38 प्लस 20 58, तो सेम हो जाएगा. तो ऑब्वियसली बाला का स्कोर जो है DI में वो 19 से कम ही होगा, बिकॉज 19 आने पर भी उनका कॉम्पोजिट स्कोर सेम हो जाता है एस्टर से. सो यस, हम ये कह सकते हैं फॉर श्योर कि बाला का कॉम्पोजिट स्कोर एस्टर से कम ही होगा. बाला का कॉम्पोजिट स्कोर एस्टर से कम ही होगा. यस, वी कैन से दैट. सो सेकेंड स्टेटमेंट, बाला's composite score was less than that of Esther. Yes, this is true. ठीक है, ओके. हालांकि हमें ए आंसर मिल चुका है, बट फिर भी हम सारे स्टेटमेंट्स को एक बार चेक कर लेते हैं. ओके, चेतना स्कोर मोर देन बाला इन DI. लेट्स चेक चेतना और बाला का DI का स्कोर. चलिए, चेतना का स्कोर 19 है. ऑब्वियसली हमने ये अभी पता हो गया है हमें कि ये स्कोर 19 से तो कम ही होगा. सो यस, चेतना का स्कोर DI में बाला से ज्यादा है. वी नो दैट. चेतना स्कोर मोर देन बाला इन DI. यस, दैट इज ट्रू. टी लिख रहा हूं मैं यहां पर. हरिनी's composite score was less than that of फलक. हरिनी और फलक का composite score. हरिनी और फलक का composite score. हरिनी का composite score अभी तक नहीं मालूम है. फलक का composite score मालूम है 47. ठीक है, हरिनी का अभी तक का स्कोर कितना है, हरिनी का अभी तक का स्कोर है 5 into 2 10 plus 20 30. तो यहां पर कोई एक फिगर आएगा जो अभी हमें नहीं मालूम है कितना आएगा, है ना. So हरिनी का composite score will be 30 plus something and फलक का composite score is 47.
सवाल ये है कि हरिणी यहाँ पर 17 नहीं ला सकती, करेक्ट, हरिणी यहाँ पर 17 नहीं ला सकती। 18 एस्टर का स्कोर आ चुका है, बट स्कोर्स कैन बी सेम, नो स्कोर कैन नॉट बी सेम, राइट, हाँ स्कोर्स कैन बी सेम, चलेगा। दानिश, हरिणी, इंदु यहाँ पर 20 आ गया है। और कोई WE का स्कोर का बारे में कुछ है हमारे पास इंफॉर्मेशन? अजय वाज द यूनिक हाईएस्ट स्कोरर, दैट इज फाइन। इंदु वाज रिक्रूटेड, इंदु एंड जतिन हैड 100%, दैट इज आल्सो फाइन। ठीक है, तो हमारे पास और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। सो 5 into 2 10 plus 20 30 एंड फलक का कॉम्पोजिट स्कोर इज 47। हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है हरिणी का स्कोर ज्यादा होगा कि कम होगा ना। फलक का स्कोर तो 47 को मैच करने के लिए भी हरिणी को यहाँ पर 17 का स्कोर चाहिए, 17 का स्कोर। हालांकि यहाँ पर उसका 17 नहीं हो सकता बिकॉज वो सेम हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं 18 रखता हूं तो इधर इसका 48 स्कोर हो जाएगा, विच इज फाइन। अगर मैं 19 रखता हूं तो 49 स्कोर हो जाएगा, विच इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, ओके। सो इज देयर एनी अदर हिंट जो हमें हेल्प करे? 4 लोग सिलेक्ट हुए हैं, हमें इतना मालूम है। कौन कौन? सो गीता हैज बीन सिलेक्टेड, इंदु हैज बीन सिलेक्टेड, जतिन हैज बीन सिलेक्टेड। उनके अलावा और कौन है जो सिलेक्ट हुआ है? हाईएस्ट स्कोर में हम अगर देखने जाए तो 71 है जो सिलेक्ट हुआ है, उसके बाद 60 है, उसके बाद 58 एक दिख रहा है। 58 किसका स्कोर है? एस्टर का। सो ऑब्वियसली 60 के बाद 58 का ही स्कोर आएगा, एस्टर सिलेक्ट हुआ है। बाकी लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं, ये अब हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। वी हैव गॉट आवर 4 कैंडिडेट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड, एस्टर, गीता, इंदु एंड जतिन। दिस इज व्हाट वी कैन से। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इफ बाला का डीआई का स्कोर कितना होगा? यहां पर हमने इसको 20 ले लिया तो 60 नॉट पॉसिबल, 19 ले लिया तो 58 नॉट पॉसिबल, 18 ले लिया तो क्या होगा? 18 तो 36 प्लस 20 56 पॉसिबल है, करेक्ट। ओके, एस्टर का 58। सिलेक्ट होने वालों में सबसे लोएस्ट टोटल गीता का है, इतना हमें मालूम है। सिलेक्ट होने वालों में सबसे लोएस्ट टोटल गीता का है, प्लस एक स्कोर हमें 58 मिला हुआ है, 58 के बाद 54 मिला हुआ है, बट 54 वाला सिलेक्ट नहीं हुआ है। वाई? बिकॉज वो फेल हुई है, दो सब्जेक्ट में फेल हुई है। सो अब बात करते हैं गीता की। 14 का डबल 28 एंड 6, 28 एंड 6 34। इधर 20 हो नहीं सकता। अगर मैं यहां पर 19 ले लेता हूं तो क्या होगा? सो 34 एंड 19 53। 54 वाला सिलेक्ट नहीं हुआ है, 58 सिलेक्ट हो चुका है। इसका लोएस्ट टोटल 53 ही हो सकता है, बिकॉज यहां पर 20 नहीं है, 20 अजय के पास है। 20 के बाद मैं यहां पर 19 दे सकता हूं। अगर मैंने यहां पर 18 दे दिया तो क्या सीन होगा? सो 14 प्लस 6, 14 प्लस 6, 14 इंटू 2 प्लस 6 34 प्लस 18, 34 प्लस 18 52 हो जाएगा। 52 ऑलरेडी अजय का स्कोर है, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो यस, गीता का स्कोर यहां पर 19 ही हो सकता है, दैट इज व्हाट वी कैन से एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो मैं यहां से 20 को कैंसिल कर देता हूं एंड उसका टोटल 53 हो गया। ठीक है, और किसका टोटल बाकी है? हरिणी का टोटल बाकी है। सो लेट्स अगेन गो बैक टू द क्वेश्चन। Which of the following statements must be false? एक false हमें ऑलरेडी मिल चुका है, so that has to be the answer. एक false ऑलरेडी मिल चुका है, इसका मतलब ये है कि आंसर ए है और बाकी सारे स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए। So that means हरिणी का composite score was less than that of फलक, ये हो जाएगा ट्रू। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज कई बार क्वेश्चन से भी जो डेटा मिलता है उसको भी यूज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, करेक्ट। तो हरिणी का कॉम्पोजिट स्कोर इज लेस देन दैट ऑफ फलक, ये बात पता चल गई। डेटा पे वापस जाते हैं। हरिणी का स्कोर फलक से कम है। फलक का स्कोर कितना है? 47। ऑब्वियसली अब इससे क्या समझ में आ गया कि भाई हरिणी का स्कोर 47 से कम है, इसका मतलब यहां पर जो भी है वो 17 से कम होगा। 17 से कम, 16 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट 17 नहीं हो सकता, 17 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, करेक्ट। तो डेटा इतना भर चुका है, कौन सिलेक्ट हुआ है ये भी पता चल गया है, टोटल भी पता चल चुके हैं जो सिलेक्ट हुए हैं उनके, करेक्ट। अभी यहां तक अपनी बात आई है। 2 क्वेश्चंस आर डन, सो लेट्स क्विकली मूव ऑन। If all the candidates except Ajay and Danish had different marks in DI and Bala's composite score was less than that of Chetna's composite score, then what is the maximum marks that Bala could have scored in DI?
देखिए क्वेश्चन के दो पार्ट है. सबसे पहले ऑल द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट अजय एंड दानिश हैड डिफरेंट मार्क्स इन डीआई. सो एक तो ये होगी कि अजय एंड दानिश का डिफरेंट नहीं है, सेम मार्क्स. ऑल द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट अजय एंड दानिश हैड डिफरेंट मार्क्स इन डीआई. सो अजय और दानिश का डीआई का स्कोर सेम हो सकता है. बाला's composite score was less than that of Chetna's score. So composite score, बाला का स्कोर जो है वो चेतना के स्कोर से कम है. ये दो चीजें हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई है. तो लेट्स यूज दैट इन द डेटा. अजय दानिश डीआई में सेम और बाला का कॉम्पोजिट चेतना से कम. यस, अजय एंड दानिश के अलावा बाकी सबका स्कोर अलग है और बाला का स्कोर चेतना के कॉम्पोजिट स्कोर से कम है. बाला का कॉम्पोजिट स्कोर नहीं मालूम, चेतना से कम है, 54 से कम है. ठीक है, ओके. इसका मतलब है कि बाला का स्कोर क्या हो सकता है? ऑब्वियसली 19 से तो कम ही होगा, ये हमें पता है. क्या 18 हो सकता है स्कोर? 18. देखिए 18 इधर किसी का नहीं है, तो लेट मी फाइंड दी ओवरऑल स्कोर. 18 का डबल 36 प्लस 20 56. 54 से कम होना चाहिए बाला का टोटल. 54 से ये रहा 54, बट उससे ज्यादा आ रहा है. 18 स्कोर नहीं हो सकता. 17 ले सकते हैं यहाँ पर. 17, चलिए 17 ट्राई करते हैं. 17 का डबल 34 प्लस 20 54 सेम हो जाएगा. ये भी नहीं चलेगा. ओके, 16 ले सकता हूं. 16 तो यूज हो गया. 15 भी यूज हो गया. 14 भी यूज हो गया. 13 ले सकते हैं. 13, चलिए बाला का स्कोर अगर मैं 13 ले लेता हूं यहां पर. 13 का, और मैं सिर्फ अभी अज्यूम कर रहा हूं तो मैं राउंड कर रहा हूं यहाँ पर. 13 का डबल 26 प्लस 26 का 26 प्लस 20 46, और 46 किसी का टोटल है नहीं. वी नो दैट कि हरिणी का टोटल जो है वो 47 से कम ही होना चाहिए. तो 46 में बाला का टोटल बना सकता हूं सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करके. सो लेट्स चेक क्या क्वेश्चन ने पूछा है. देन व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट बाला कुड हैव स्कोर्ड इन डीआई. बाला का डीआई स्कोर मैक्सिमम हमें मिलेगा 13. बाला का डीआई का मैक्सिमम स्कोर हमें मिल जाएगा 13. और प्लीज अंडरस्टैंड, उन्होंने मैक्सिमम पूछा है, इसका मतलब है ऐसा जरूरी नहीं है, बट मैक्सिमम कितना पॉसिबल है ये पूछा है. चलो इसी के साथ क्वेश्चन 4 पे बढ़ते हैं. इफ ऑल द कैंडिडेट्स स्कोर्ड डिफरेंट मार्क्स इन डब्ल्यूई, देन व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट हरिणी कुड हैव स्कोर्ड इन डब्ल्यूई. ओके, डब्ल्यूई पे बात करनी है, सबका डिफरेंट है और हरिणी का मैक्सिमम पूछा है. तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि इससे पहले जैसे किया उसी तरीके से करेंगे. डब्ल्यूई में मैक्सिमम कितना ये पूछा है. देखो 17 से कम होगा. 16 पॉसिबल है ना, जतिन का है 16. 15 पॉसिबल है ना, दानिश का है 15. 14 पॉसिबल है 14. चलो 14 में इधर डाल के टोटल अगर उसका ढूंढ लूं, अज्यूम कर रहा हूं मैं. सो 5 का डबल 10, 10 प्लस 20 30 प्लस 14 44. क्या किसी का स्कोर 44 है? नहीं है. इसका मतलब है हम यहां पर मैक्सिमम जो है 14 रख सकते हैं, बिकॉज 14 डब्ल्यू में किसी का नहीं आया है. सो दैट इज द आंसर. 14 का स्कोर हो सकता है. Right? So now you understand that overall this set was difficult, right? It must take about 13 to 15 minutes to solve completely, right? I'm not saying that this is an ideal choice for your paper. I'm saying that if you pick up this set and if you make sure that you want to solve this one, you have to do this way, correct? So with that, let's move to our next set.